जैसा कि आपको पता है कि ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ख़ास ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो वी विल टॉक अबाउट वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द वर्ल्ड कप ओवर द लास्ट 24 आवर्स। और बहुत ही दिलचस्प 24 घंटे रहे हैं अभी तक, क्योंकि इसमें हमें एक बहुत बड़ी अपसेट भी देखने को मिली है, जिसमें इंग्लैंड हारा है आयरलैंड के हाथों। उसके अलावा एक वॉश आउट हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ेगा, वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन आज 3 बड़े मैचेस हैं, जिनमें पहला मैच जो इस वक्त जारी है, that is being played between South Africa and Bangladesh, and we've had a phenomenal innings by Riley Rousseau, जिन्होंने एक और T20I सेंचुरी मारी है ever since coming back। और इस वक्त काफ़ी हद तक साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है और लग यही रहा है कि एक बहुत कन्विंसिंग विन होगी। मेरे साथ मौजूद है रेहान। इससे पहले कि हम कल की अपसेट के बारे में बात करें, राइली रूसो अगेन, एंड दिस इज़ अ बांग्लादेश टीम जो coming into the World Cup was riding high on confidence despite some iffy results। लेकिन जब से शाकिब की अपॉइंटमेंट हुई थी, they felt very very comfortable with the lot that they have around them। I don't know why they felt so comfortable going to Australia, and also their tournament record उनका जो भी आपने देखा है, in every tournament they come, even last year के T20 World Cup में people thought कि they have a decent team। उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को होम में हरा कर आए थे, but in big tournaments they just don't perform, एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था तो नो वन रियली एक्सपेक्टेड देम टू परफॉर्म आइदर। जहाँ तक आपने राइली की बात की, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे आई वाज डिगिंग अप सम स्टैट्स ऑन राइली ऑन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर आप किसी प्लेयर को बहुत जल्दी उसके करियर में कुछ लेवल कर देना और उसकी रिसर्जेंस हो जाए, तो आपको उसकी रिसर्जेंस को उससे भी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। राइली व्हेन ही फर्स्ट वाज पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका टीम, तो उसकी 30 से कम की एवरेज थी, 140 के करीब का स्ट्राइक रेट था। Since his comeback, his strike rate is 180 plus and his average is 50 plus, and he scored 2 centuries and 196 in 9 innings only. The point here is that everyone talks about how the standard of international cricket is far greater than domestic cricket. However, जो franchise और league cricket है, Riley is a product of that over the last 3, 4, 5, 6 years। In fact, more than that. More than that. 2016 onwards, he's just been doing that। ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने। उससे क्या होता है कि because Riley has played in almost every league in the world, in every conditions, against every type of bowler, तो when he plays international cricket after all of those league cricket, तो उसके लिए it becomes easier to adjust, and he knows कि he's played all these Bangladesh bowlers in the BPL, right? So he knows how to play them। when he'll play Pakistan, he's played all of them in the PSL। when he plays England, he's played all of them everywhere। ठीक है, and almost every team you bring up, उसको already experience है उन conditions में, उन bowlers के against, तो it has worked in his favor। He's one example, and there are plenty of such examples out there as well। but sensational performance from him, and I think उसका बहुत clear, since he's पूरा साल ये सिवाय मुल्तान सुल्तान्स के he's batted at 3, तो it's a very clear role that he's been given। He's been given a very clear role। और मैं सिर्फ इसी बात यही बात करके आगे मूव ऑन करूँगा बाकी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए, कि हैविंग स्पेंट 3 seasons with Riley Rousseau already, one of the most intelligent cricketers that you'll come across, one of the most talented cricketers you'll come across, and seriously मुझे तो लगता है कि अब 2019 से शायद ये ट्रेंड ही चला आ रहा है कि हर साल एक राइली रूसो सेंचुरी तो आपको ज़रूर देखने को मिलती है। इस दफ़ा ऑलरेडी आपको 2 नज़र आ गई। 2, and he's only the second player in the history of men's T20 cricket to score 2 centuries in a year। 2 centuries in a year। अच्छा, अब चलते हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड पर। कल इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का मैच हुआ। सबसे पहले तो आयरलैंड ने एक बहुत ही दिलचस्प आगाज़ किया। पावर प्ले में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था आयरलैंड का। उसके बाद पहले 10 ओवरों के एंड पर तकरीबन कोई 92 for 1 थे, एंड देन सडनली पहले एक रन आउट हुआ एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, उसके बाद कुछ क्विक स्ट्राइक्स बाय मार्क वुड, एंड देन वी सॉ अ स्पेल बाय लियम लिविंगस्टन, जहाँ पर उन्होंने इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया, एंड दे एंडेड अप विद अ टोटल, आयरलैंड एंडेड अप विद अ टोटल जो आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट देखने वालों को यही लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए पिच पावर स्कोर वाज 155 to 160। या, बट द वे दे वर गोइंग, या यू थॉट कि 180 is easily manageable for them। बट आयरलैंड का ये हमने पहले भी मसला देखा है कि आयरलैंड के अगर आप टॉप 4, इफ़ द टॉप 4 स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, इट्स फाइन, एंड उनका टॉप 4 का बहुत क्लियर आइडेंटिटी है। इवन येस्टरडे दे वर 59 for 1 इन द पावर प्ले। स्टर्लिंग ओनली स्कोर्ड 14, बट ही हिट्स अ 6 of Mark Wood,
he hits another boundary, they are already set on their way. Balbirnie continues that momentum, and by the end of the power play they're 59. तो जब पावर प्ले उनका ख़त्म होता है और इंग्लैंड का ख़त्म होता है, दे आर ऑलरेडी 10-15 रन अहेड. तो वो कवर करना, हमने कल 5 रन पे इतनी बात की थी, स्पेशली इन अ रेन शॉर्टेंड मैच, becomes really difficult. अच्छा, फिर जब इंग्लैंड की बारी आई, जब इंग्लैंड की बैटिंग की बारी आई, तो एक तो जॉश लिटल, ओ माय गॉड, इन ओवरकास्ट कंडीशंस में ये लेफ्ट आर्म सीमर्स और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आई वाज मोर इम्प्रेस्ड बाय दैट डिलीवरी टू मलान, नो टू Stokes, the hand delivery to Stokes, yeah, but his name is hand when hand, yeah, okay, go on. अच्छा, मुझे उस बॉल की बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि आई हैव सीन द रिप्ले लाइक 100 times नाउ, एंड इट इज़ जस्ट द sheer randomness of that ball. एक तो वो बहुत मुश्किल है, दूसरा the length is inch perfect because the batter is thinking, यार या मैं इसको front foot पे आके मारूं, या I give myself a little room and hit it through the offside, and Stokes is stuck in between, and then the ball swings as well. So because it swings into him, he can't play on the offside because he's opened up his body, the stumps are completely exposed, or everyone will now be saying no feet movement. No feet movement is because of that length and because of that swing. वो it's a product of that ball. उसके बाद आप अगर हैंड का पूरा स्पेल देखें तो आप कहें यार ये बॉल इसने कराई कैसे थी, because he bowls down the leg side, his line is and length is all over the place a little, and then you think it is just the sheer randomness of some deliveries that make them unplayable. Because you as a batter you target कि यार ये बॉलर आया है और मैं पीछे हूँ required rate से, I'm going to target this bowler. And when that bowler produces that, so it's impossible to play. और Ireland maintains its wonderful record of upsetting. England versus Ireland की बात कर रहे थे, लेकिन अब तमाम तर conversation about Pakistan versus Zimbabwe. आज 3 मैचेस, जैसा मैंने आपको बताया था, 3 मैचेस खेले जाएंगे, और जो आखिरी मैच है आज के दिन का वो होगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे. वी विल ट्राई टू एनालाइज दैट इन डिटेल टुडे. कुछ रूमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड बातें बड़े दिनों से चल रही हैं, तो रेहान से उनके बारे में भी बात करेंगे. रेहान, जो सबसे पहली बात चल रही है वो ये चल रही है कि शाहीन को शायद रेस्ट दिया जाएगा. वी जस्ट एट दिस स्टेज, अगर अनलेस ही इज अनफिट और आपने उसे मैच फिटनेस दिलानी है, मतलब अनलेस इज अनफिट, तो उन्हें रेस्ट कराने का पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो इतने से बाद आ रहे हैं और पहले मैच की कंप्लेन ये थी कि शायद वो रस्टी थे, तो common sense would suggest you give him match fitness. Unless there is some underlying issue. And वो basically the physio has to assess that, the doctors have to assess that. और at the end of the day मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है किसी भी बॉलर का, खास करके अगर फिजियो उसके बियॉन्ड आपको कह दे कि आप अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड आपने मीट कर लिया है, इसके ऊपर इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू प्ले और नॉट, बिकॉज यू ओनली नो हाउ योर बॉडी फील्स एंड इट इज़ अ प्लेयर्स कॉल. एंड अभी तो आपको पहले तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड पे जाना चाहिए, उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए. अगर वो फिटनेस टेस्ट से थोड़ा सा भी नीचे है, डोंट रिस्क इट, बिकॉज आपका जिम्बाब्वे से मैच है, एंड इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप हार गए तो यू शुड ब्लेम योर सेल्फ विद और विदाउट शाहीन. यू शुड बी विनिंग दिस मैच. सो बेसिकली यू हैव टू प्रोटेक्ट शाहीन नॉट जस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप. आई जस्ट थिंक कि शाहीन इज़ अ वंस इन अ जनरेशन टैलेंट, एंड अगले 10 साल के लिए आपका वो मेन बॉलर होगा, तो लुक आफ्टर हिम. बट या दैट्स द कंसर्न ना कि पहले इसको खिलाया क्यों एंड ऑल दैट. बट आई जस्ट फील कि इंडिया वाले मैच में इट वाजंट दैट बैड टू प्ले हिम. वो जो पहले 2 ओवर हैं वो आप 10 दफ़ा उसका रिप्ले उठाकर देख लें, यू कैन क्लियरली सी दैट द इंडियन बैटर्स हैव दिस फैक्टर इन माइंड कि दिस इज शाहीन. वो पीछे ही रहते हैं, नहीं उन्होंने कोई किसी आई मीन दैट यू हाउ ऑफन डू यू सी रोहित शर्मा लीविंग बॉल्स इन द फर्स्ट 2 ओवर्स इन द पिछले 1 साल में, खासकर जैसे वो बैटिंग कर रहा है. एंड हाउ ऑफन डू यू सी के राहुल अपना आगे पाँव ही नहीं लेके जा रहा है, इस चक्कर में कि बॉल अगर अंदर आ गई तो आई एम बीटन. अच्छा रेहान, जो दूसरी बात है वो ये है कि ये बात भी आ रही है हमारे तक कि फ़खर जमान माइट बी फिट टू प्ले. अब अगेन यहाँ पर सवाल वही खड़ा हो जाता है. एक तो आई थिंक इट इज़ स्टिल सेफ टू अज्यूम कि शान मसूद की पिछली इनिंग्स के बाद शान तो विल स्टिल बी प्लेइंग. If Fakhar comes in, then that would again suggest that they are not going with the 4th seamer. Yeah, I think they will go with the 4th seamer. If they don't, then you're not really preparing. देखिए मेरी बात सुने. You think या you know? I think. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा ना लोग कहते हैं कि यार आप तो फ़ोन करके बात कर लिया करें. मैं आपको एक बात मैं आज आपको यहाँ पे बता दूँ.
हम जितने मर्जी क्लोज हों टू आर फ्रेंचाइज प्लेयर्स, हम कभी भी मतलब रिस्पेक्टिंग द ड्रेसिंग रूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। Yes. कभी भी उनसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, हम तो उनसे ये भी नहीं पूछते। शायद आई थिंक एक आधी दफ़ा मैंने एक प्लेयर से पूछा था, हाँ भी खेलोगे, क्योंकि उसकी फिटनेस का कंसर्न था, मैंने वरना मैं ये तक नहीं पूछता कि विल यू बी प्लेइंग टुमारो और नॉट। The only conversation I have is, are you okay? Are you fit? That's it. Yeah. ठीक है. No other conversation. If a player wants to ask you something, is the only time आपको Yeah. intervene करना चाहिए, because वो एक नेशनल सेटअप के अंदर हैं. आप उनको ऑलरेडी बहुत एडवाइसेस मिल रही हैं. अगर आप भी हीरो बन के उनको कहोगे एंज नहीं एंज कर ले, तो वो नहीं हो सकता. वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं जिम्बाब्वे के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे हैज़ दिस टेंडेंसी, स्पेशली ऑफ लेट अगर हम देखें तो ये जो जिम्बाब्वे का प्लेयर्स का जो ग्रुप है, Yeah. दे फेस सो मच एडवर्सिटी Yeah. कि जो इनसे शायद इमीडिएटली पिछली जनरेशन थी, मैं जनरेशन तो नहीं कहूँगा, मैं लॉट कहूँगा, Yeah. वो कई दफ़ा लगता था कि देयर शोल्डर्स वुड ड्रूप एंड दे वुड गिव इन, but this is a side which is a resilient side. You have fighters in this, Greg Irvine, Sikandar Raza, Madhuvere, Yeah. Burl, Blessing. को मैं तब भी कहूँगा कि शायद वो रोल ही डिफरेंट है, बट जो फाइट आपको आती है प्राइमरली वो उनके इस कोर से आती है। इन्होंने अभी आई थिंक पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ मैचेस हराए भी हैं, एक मैच, 2 मैचेस ओवरऑल ओवर द लास्ट 2 हाँ, इयर्स। इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले थे ये, बहुत अच्छा when खेले थे। इंडिया वेंट टू जिम्बाब्वे, बट डिफरेंट कंडीशंस, एवरीथिंग डिफरेंट. देखें, सिंपल बात ये है कि ऑन पेपर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, पाकिस्तान देमसेल्व्स बीटिंग जिम्बाब्वे. अगर आप जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही, यानी वर्ल्ड कप जीतने का तो ख्वाब तो बहुत दूर की बात रहेगी ना. जहाँ तक आपने जिम्बाब्वे की बात की, जिम्बाब्वे, समटाइम्स आई फील रेजिलियंस is not a choice. You only become resilient when you're put in that position and you have no other option, and that's the only way to survive. And वाह, हाँ, वाह। thank you, अच्छा खैर, thank you. ये मुझे हमेशा पाकिस्तान से याद आता है कि we are a very resilient nation. तो खैर, point being के they have some really quality players. आपने सिकंदर की form everyone knows. The way they played against South Africa, I really like that, despite the fact कि they were not very good. बट व्हेन सिकंदर कम्स इन टू बैट, वो ये नहीं देखता कि 3 या 4 आउट हो गए हैं, 9 ओवरों का मैच है, मे बी आई टेक अ कपल ऑफ बॉल्स, ही गोज आफ्टर द फर्स्ट बॉल, गेट्स आउट. दे ट्राइड टू मैक्सिमाइज व्हाट दे हैड. ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड साइन, एंड दैट्स अ डेंजरस साइन फॉर एनी टीम एज वेल. तो Pakistan might win with 3 pacers and 2 spinners in this match, but that should not dictate how Pakistan prepare for the South Africa match. अच्छा, हमारी पिछले 2-3 जो क्वेश्चंस होते रहे या जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती रही, उसमें काफ़ी दफ़ा सिकंदर रज़ा का नाम आया. सो लेट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स, इफ़ यू वर इन दैट थिंक टैंक एंड यू हैड टू प्रिपेयर अ प्लान अगेंस्ट सिकंदर रज़ा, व्हाट वुड दैट बी? Bounce him early on in his innings, not after he set, but early on in his innings, bounce him with high pace. With high pace, that's Yes. going to be your... Yes. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. अब उधर ब्लेसिंग मज़हर रवानी की तरफ आ जाते हैं. Yeah. ब्लेसिंग मज़हर रवानी हैज़ अ वंडरफुल रिकॉर्ड अगेंस्ट बाबर आजम. बल्कि He मैं has a आज very good record against most Pakistani batters. मोस्ट पाकिस्तानी बैटर्स, बल्कि मैं आज आपको ये भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि PSL 6 में जो रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने ब्लेसिंग मज़हर रवानी को ड्राफ्ट इन किया था, तो हमने स्पेसिफिकली पहला मैच कराची के ख़िलाफ़ सोच कर किया था. ये बात रहता है कि बाय द टाइम ब्लेसिंग की आइसोलेशन ख़त्म हुई थी वो मैच ख़त्म हो गया था. मैच में वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ब्लेसिंग कैटेगोरिकली उस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हुए थे. तो इस वक्त आप क्लियरली देख रहे हैं कि, अच्छा, आप क्लियरली देख नहीं रहे, रिकॉर्ड आपको ये शो करता है कि ओके, देर मतलब विजुअल एविडेंस भी आप देखेंगे उसमें कि ब्लेसिंग वर्सेस बाबर कुड बी वन मैचअप, उसमें कैसे एक्सप्लॉइट करना है. And Blessing is a horrible matchup for anyone who's playing down the order. एग्जैक्टली, Because he gets a lot of bounce. तो उस टू गेट अंडर हिम, तो उसके लिए आपको क्रॉस बैटेड शॉट्स चाहिए. क्रॉस बैटेड शॉट्स में मसला ये है कि अगर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हो तो देन यू गेट इन ट्रबल. तो ही इज़ ऑल द गिफ्ट्स दैट अ बॉलर शुड हैव, ही हैज़ ऑल ऑफ देम. एंड आई फील कि उसकी हाइट की वजह से ही गेट्स दैट एक्स्ट्रा बाउंस, टू द पॉइंट ही गेट्स एक्स्ट्रा बाउंस इवन ऑन पिचेस जहाँ पे आपका कोई और बॉलर है उसकी वेस्ट हाइट से ऊपर बॉल नहीं आ रही. ही गेट्स बाउंस ऑन दोज पिचेस एज वेल. So on these pitches he'll be a handful, and also the way he bowls and the way he hits the seam, which is wobbly sometimes and sometimes straight. So with the seam movement we've seen, he'll be the key player.
और आई थिंक अगर हम पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें कि हु कैन बेस्ट मैनेज ब्लेसिंग, आई थिंक बिकॉज ऑफ द टाइम दैट दे स्पेंट विद हिम इन द एमिरेट्स एज वेल, रिजवान इज वन एंड द अदर इज वक्त। और हम जब इस पे बात कर रहे थे तो कल जिस तरीके का मैच चल रहा था बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, तो मुझे लगा था कि काफ़ी नॉमिनेशंस आ सकती हैं उसके अंदर। एक तो जिस तरीके से मार्क वुड ने बॉलिंग कराई, एक वो कंटेंडर थे, फिर जिस तरीके से लियम लिविंगस्टन ने कम्प्लीटली आके आयरलैंड को रोका, वो एक ऑप्शन थे। जॉश लिटल की बॉलिंग बहुत खूबसूरत थी, एंड देन वी ऑल्सो सॉ मोइन अली पुटिंग अप रेयर गार्ड फाइट बैक। लेकिन फॉर अस द प्लेयर ऑफ द डे was Balbirnie, the captain of Ireland, who stood head and shoulders above all his peers over there, और उनकी एक consistency थी रेहान, जिस वजह से bias you mean ICC, क्योंकि उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है। वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है। मतलब for me honestly, Balbirnie really good, but in terms of the impact, Josh Little's bowling was amazing, but Balbirnie set up the total, so yeah, rightly so he's player of the day. प्लस आई थिंक जो इस वक्त जिस तरीके से वो रैली राउंड करा भी रहे हैं अपने प्लेयर्स को, आई मीन एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग रियली रियली वेल टू हिम। आई मीन स्टर्लिंग जैसे प्लेयर को जल्दी लूज करने के बावजूद आई थिंक बेलबर्नी जस्ट हिट्स दैट राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, बाय द वे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट की, क्योंकि एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड व्हेन स्टर्लिंग प्लेज लीग क्रिकेट, ही इज द टॉप ऑर्डर बैशर, व्हेन ही प्लेज फॉर आयरलैंड ही इज देयर एंकर, ठीक है। If he gets out, then Balbirnie does that role. That is why the power play is spectacular. कि despite Sterling getting out, they don't lose momentum. Although yes, उसमें 5 wide भी एक होती हैं and everything, but they don't lose momentum. And 59 for 1 पे वो power play खत्म करते हैं. That is why I think that innings deserves to be. आज की आपकी prediction for player of the day? मैच मतलब पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे भी है और पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स भी है। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स में तो उनके टॉप 3 में से कोई भी आउट ही नहीं। लेकिन आप वही 2 नाम जो आपने देने, आप दें 2 नाम है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक विद द बैट बाबर आजम, विद द बॉल नसीम शाह। अच्छा, मैं प्लेयर ऑफ द डे में कहूँगा एक राइली रूसो, फुल टॉस था ये। और दूसरा मैं कहूँगा कि आई ऑनेस्टली थिंक कि एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न टुडे इट इज़ गोइंग टू बी रिजवान। मतलब अब बिकॉज आई थिंक इट पाकिस्तान नीड्स रिजवान टू परफॉर्म इस वक्त फॉर पाकिस्तान टू हैव अ गुड वर्ल्ड कप कैंपेन। ये था जी हमारा ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे। अब चलते हैं आपके ट्वीट्स की तरफ। लेट्स हैव द ट्वीट्स ऑन द स्क्रीन। पहला ट्वीट जी हमें सुहेब पूछ रहे हैं कि मैं I hope you realize any preview of Pakistan versus Zimbabwe now is incomplete without the Mr. Bean story. इसके बारे में आपको थोड़ा सा मुख्तसर बताएं कि जब पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का प्रीव्यू हो रहा था ऑनलाइन, तो किसी जिम्बाब्वियन ने वहाँ पे लिखा कि पाकिस्तान से एक दफ़ा हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। पाकिस्तान से एक फेक मिस्टर बीन को हमारे इधर भेजा गया फॉर इवेंट्स एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। और उन्होंने फिर तस्वीरें भी लगाई और पता चला वो एक मिस्टर बीन कैरेक्टर पाकिस्तान में भी होते रहे। वो एक आई थिंक एक आधे बैंक के इश्तिहार में भी चल रहे थे। उसके बाद से कल से इट इज गॉन वायरल। इतने डिसअपॉइंटेड हैं तो आप उसका सेल्फीज क्यों खिंचवा रहे हैं? एंड दूसरी चीज़ मेरे हमेशा आप एक बात याद रखिए, बीन होता है असली हो या नकली हो, ठीक है। बट हियर्स द थिंग ना कि वी आर सो, हम तो कायदे आज़म को निकाल देते हैं 14 अगस्त के ऊपर। Let's have the next tweet on screen. This was probably just for a little light-hearted moment. मुबशर का सवाल है, इंग्लैंड के फास्ट नहीं सॉरी यूसुफ का सवाल है, अपॉलॉजीज देयर। अच्छा ये यूसुफ का सवाल है कि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास ज़्यादा पेस है आयरिश बॉलर से, लेकिन उन्होंने सब पार परफॉर्म किया दैन द प्रीवियस परफॉर्मेंसेज एक्सक्लूडिंग सैम करन एंड स्टोक्स, जो ज़्यादा रेगुलरली बॉलिंग वो इतनी एक्सप्रेस पेस पे नहीं कराते। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में फेस सिमिलर प्रॉब्लम विद पेस बॉलर्स एज अ टूर्नामेंट पासेस? अच्छा, इसमें यूसुफ मैं एक बात तो ये करूँगा कि जहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा है एक्सप्रेस पेस से जो मार्क वुड का इम्पैक्ट था इंग्लैंड के लिए, वो that was phenomenal. और and the fastest bowler in Ireland's team also, Josh Little, was also doing well. And also नॉर्किया को देखें वो क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस पेस बॉलर्स इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या कर रहे हैं। एक्सप्रेस पेस विल हैव ऑफ डेज, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड अभी आप ये जो मीडियम पेसर, आई थिंक वोक्स की वजह से प्रॉब्ली शायद वो कह रहे होंगे, नहीं मीडियम पेसर तो अभी तक वर्ल्ड कप में इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है। हमने इंडिया वाले मैच में भी बात की थी कि दोज वर परफेक्ट कंडीशंस फॉर भुवनेश्वर कुमार एंड अर्शदीप सिंह विद द न्यू बॉल। The overcast conditions are helping swing bowlers who bowl at lesser pace to do well.
बिकॉज व्हेन यू बॉल अबव 140 तो बॉल डजंट गेट इनफ टाइम टू स्विंग. ठीक है. बट उसमें डिफरेंस, उसमें कैविएट ये है कि इफ यू आर बॉलिंग अंडर 140 तो यू नीड द बॉल टू स्विंग मोर. इफ यू आर बॉलिंग अबव 140 तो आपको थोड़ी सी बॉल मूव करनी है एंड इट्स इनफ. सो बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज राइट नाउ तो ये ऐसे फील कर रहा है जिस तरह कुछ मैचेस तो ऐसे हुए हैं कि जेन्युइनली आपको फील होता है कि अर्ली इंग्लिश समर में जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं और जेम्स एंडरसन आके ये कर रहा है, तो उस टाइप की कंडीशंस काफ़ी मैचेस में हुई हैं. दैट इज़ व्हाई यू आर सीइंग दिस. ठीक है. एक वो मुबशर का सवाल भी अगर हम ले लें स्क्रीन पे, तो लेट्स गेट दैट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एज वेल. वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड वर्ल्ड क्लास टीम सिर्फ तब है when the par score is 160 on the pitches. I personally are they a world class team? Khair, I personally think that they're more suited to 180 plus par pitches and struggle on low scoring venues. Rehan. आई थिंक इंग्लैंड द लोअर द स्कोरिंग वेन्यू, उधर फिर आपका जो बॉलिंग है ना वो इक्वल, आपकी जो अगर बुरी बॉलिंग भी है तो वो कवर हो जाती है, तो उसमें आपकी बैटिंग देन राइजेज अप. कल रेन शॉर्टेड मैच था, इंग्लैंड लॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो यू हैव टू सी के किस बाउंस के ऊपर वो खेल रहे हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रीवियसली क्या रिकॉर्ड रह चुका है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी डिफरेंट टू द मोस्ट कंडीशन दे प्लेड इन. तो आई डोंट थिंक देर अ बैड टीम ऑन पिचेस दैट have lesser runs. They were one of the standout teams in last year's World T20 and on lower scoring venues in Sharjah, UAE, Abu Dhabi. South Africa अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं वो कर सके उतना अच्छा, बट द लोअर द स्कोरिंग पिच उनकी बॉलिंग को उतना फ़ायदा है बिकॉज उनकी बॉलिंग लुक्स बेटर देन इट इज़ एंड बैटिंग तो उनकी वैसी ही अच्छी है. ठीक हो गया. अच्छा रेहान, अब चलते हैं वापस ज़रा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पे ब्रीफ कॉन्वर्सेशन करके फिर शो को वाइंड अप करेंगे. मुझे ज़रा जल्दी से आप ये बताएं कि we want the fourth seamer to come in. इस वक्त इतना क्लियर नहीं अभी तक, we're not getting clear signals कि क्या होना है. You think that they will go ahead with four seamers? They should is my they should is what Yeah. you're saying. यहाँ पर अब मेरा आपसे थोड़ा सा ये है क्वेश्चन, मेरा मेन आपसे ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो टॉप ऑर्डर है that is going to play as it is, what advice would you give to them as to how they should approach the game in Perth? I love this question because I was waiting for this question since the start of the show. One of the biggest advantages of being a host of a TV show is that you can throw the other person under the bus and say कि अगर इसको ड्रॉप करना है तो इसकी जगह किसको लेके आना है. ठीक है, तो आप मुझे बताएं. ना जवाब दें यार, शो खत्म करते हैं. अगर फोर्थ पेसर खिलाना है तो who would you drop? I would probably drop Haider Ali. And if you want to play Fakhar, who would you drop? I would then have to drop Shan Masood as well. लेकिन अगर फोर्थ पेसर खिलाना है, लेकिन अगर फोर्थ पेसर नहीं खिलाना तो इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन आई थिंक So let's say नहीं, लेकिन नहीं शो का टाइम खत्म हो गया. मैं वैसे एक Last बात बताऊं, चीज़- आसिफ अली कैन आल्सो बी ड्रॉप क्योंकि आपको प्रॉब्ली शान की वो कंसिस्टेंसी चाहिए, और इफ आई डोंट सपोर्ट शान तो फिर मुझे सारे कहेंगे कि मैं नहीं, अभी तो आपने टीम से निकाला है उनको. अच्छा मैंने वापस भी लाया. ये मैं क्लिप चलाता रहूंगा. ये था जी हमारा आज का शो. आपको शान, कैसा अगर आप लगा? ये सुन रहे हैं, था हमारा आज का शो, आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. कल हम हाजिर होंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के रिव्यू के साथ, एंड वील आल्सो डू अ प्रीव्यू ऑफ द गेम टुमारो. टिल नेक्स्ट टाइम, हैदर अजहर और रेहान उल हक को इजाज़त दे. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज.